बोलिए. So if I remove this partition, what will happen? This oxygen will travel this side? Yes or no? Yes. Okay. ये नाइट्रोजन भी ट्रेवल करेगा इधर से इधर. Yes, agreed all of you. Any doubt? तो बच्चों होगा क्या कि जब आप इसको रिमूव करोगे तो ये ऑक्सीजन लेफ्ट टू राइट भी जाएगा. I mean, simply O2 will spread throughout the container. And similarly, nitrogen will also. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So this particular phenomena where flow of gas is taking place from one space to other, and why it is happening, guys? Because there is no oxygen here, right? Partial pressure of oxygen is here 10 atm, this side 0. So the moment you remove this, so it will try to disperse. So this is happening just because of the pressure difference. This side 10 atm of oxygen, this side 0 atm of oxygen. Likewise, this side 5 atm of nitrogen and this side 0. Another example, suppose if you have only single container, single gas inside it. You imagine in this way that this side we are having oxygen at 10 atm and this side nothing is there, vacuum. And now if partition is removed, then what will happen? This will spread throughout the container, oxygen will be there. O2, O2 everywhere, O2, O2. This is the simplest thing where we can understand what is diffusion. So what did you understand by the term diffusion now? The flow of the gas. In fact, this term you can extend till liquid also. Flow of fluid, gas or liquid, from higher pressure side to lower pressure side, right? That is termed as diffusion. Now, what is diffusion? What is diffusion then? Suppose now what I am doing, there is a pinhole over here. There is a tiny hole, pinhole. And suppose I took a piston over here. And suppose here we have gaseous molecules. And I started pressing it. So obviously, guys, you can see
because of tiny hole is there. No matter, even suppose outside oxygen, nitrogen, every other gases is there, and inside only I have helium, then will it be allowed that oxygen should go inside O2 and N2? No, because it is such a tiny hole, and at the same time here the pressure of helium is so high that it will only go outside. It will not allow any one of them to come inside. So this is a forced, isn't it? It is a forced diffusion. Yes or no? इसी को लीकेज आप बोल रहे हो कि सर जब भी कभी टाइनी होल से, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? सर अगर आप यहाँ पार्टीशन रिमूव करते हो तो बोथ द साइड गैसेस कैन मिक्स इन ईच अदर, जबकि यहाँ पे आप सर बाहर कुछ भी रखो, outside if any other gas is there, atmospheric gases are there, nothing will happen sir, they will stay as it is. वो अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ बाहर कौन निकलेगा बेटा? हीलियम ही निकलेगा, ये कभी अंदर नहीं जा पाएंगे. तो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग नहीं हो रहा है, इतना यहाँ पे छोटा होल है यहाँ पे, राइट? सो इफ्यूजन इज द compressed diffusion. So when gas is flowing from tiny hole this will be termed as effusion. The main point related to that is, note, in effusion only unidirectional flow is allowed. राइट, जबकि डिफ्यूजन में क्या है, दोनों साइड से वो डिस्पर्स कर सकता है. तो ये समझ में आ गया कि ये क्यों हो रहा है, why it is happening, and this is happening due to pressure difference. Okay, difference of pressure, right? Understood है, ये मैंने ऊपर आपको समझा दिया. Is that clear guys? So this is diffused gases. ये जो है ये इफ्यूज्ड गैस है या डिफ्यूज्ड गैस. अगर यही होल का साइज बड़ा कर दो बेटा, यहाँ तक इतना बड़ा कर दो, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, इधर से ये भी जाएगा, ऑक्सीजन भी आएगा. अंडरस्टूड? यस नो? तो ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? थोड़ा दिमाग लगाएंगे. रेट को हम क्या क्या लिख सकते हैं? हाउ टू डिफाइन रेट ऑफ डिफ्यूजन? हाउ टू डिफाइन इट? डिफ्यूजन या इफ्यूजन का रेट कैसे डिफाइन करें? बोलिए. हाउ टू डिफाइन? तो देखो, एक तो ये समझ में आता है कि रेट का मतलब सिंपली, अगर मैं ये इसको ही डायग्राम को कंसीडर कर लूं, राइट? तो ये जो वॉल्यूम है या जो मोल है इसके अंदर, ठीक है, ये डिफ्यूज्ड पार्ट है. थोड़ा सा अगर होल साइज बड़ा कर लो मैं, तो डिफ्यूज्ड और इफ्यूज्ड. डिपेंडिंग ऑन द पोर साइज. और ये इनसाइड गैस है,
तो बच्चों आप कैसे डिफाइन करोगे रेट को? तो आप बोलोगे सर रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इक्वल टू, नहीं बोल सकते हो आप कि वॉल्यूम आउटसाइड जितना भी, या वॉल्यूम डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हालांकि इंस्टेंटेनियस होगा तो dv बाई dt। ये पूरा वॉल्यूम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? इसको और अगर मुझे अच्छे से बोलना हो तो आप बोल सकते हो कि सर इसको आप मोल के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। मोल डिफ्यूज, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, मोल ऑफ गैस डिफ्यूज्ड होल डिवाइडेड बाय टाइम, है ना बच्चों? तो हम तो बहुत सारे टर्म में इसको डिफाइन कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टाइम, वॉल्यूम ऑफ डिवाइडेड बाय टाइम, इस पे डिफाइन कर सकते हैं, राइट? तो ये हमारे ऊपर है हम कैसे इसको मोल में, मास में चाहो तो आप मास में भी डिफाइन करते हो, कितना मास गैस का या डिवाइडेड बाय टाइम। सो इट इज अप टू यू। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, कौन फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा डिफ्यूजन को? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, कौन सा फैक्टर है भाई? तो जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, नंबर वन। क्या आपको नहीं लगता है कि सर अगर हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि सर अगर इधर अंदर का प्रेशर ज्यादा रखें, बाहर जो भी गैसेस आई हुई हैं उनका प्रेशर कम रहे, तो ये इधर जाएगा? ये सुनो, द वेरी फर्स्ट थिंग इज प्रेशर ड्रॉप। Difference of the partial pressure of the gas. Yes or no? Undergoing diffusion. That means rate of diffusion or effusion is proportional to delta P. डेल्टा P का मतलब क्या है बेटा? P inside minus P outside. क्लियर है? अगर मान लो आउटसाइड प्रेशर 0 हो तो, इफ P outside is 0, फिर क्या होगा? Rate of diffusion or effusion will be proportional to pressure inside. Obviously inside. Understood? जब भी मैं P का बात करूंगा तो इनसाइड प्रेशर का बात हो रहा है। गॉट माय पॉइंट गाइस? यस गुड। सेकंड बात करते हैं, और बताइए प्रेशर के अलावा और कौन सा टर्म होगा? दूसरा टर्म अगर आप देखो तो हाँ बिल्कुल, पोर साइज, साइज ऑफ द पोर, साइज ऑफ द होल ऑफ पोर। जितना बड़ा होगा बेटा, जितना बड़ा एरिया ऑफर करेगा उतना ज्यादा गैसेस निकल सकेंगे पर यूनिट टाइम में। साइज ऑफ द होल, राइट? So rate of diffusion or effusion is proportional to area. थर्ड और बताओ, और कौन सा फैक्टर है? मास। What happened? मास। किसका मास बेटा? सर गैस का। देखो गैस का मास आने से क्या होगा? सर चलो जितना ज्यादा, हाँ बोलो। सर जितना ज्यादा मास होगा डिफ्यूजर का रेट कम हो जाएगा। हाँ बात तो सही है, लेकिन वो एक जगह पे इंक्लूडेड है वो,
उसका इंक्लूजन है एक जगह पे। अब मैं बताता हूँ, देखो, एक तो आपने बता दिया पोर का साइज, दूसरा बता दिया प्रेशर डिफरेंस, तीसरा और एक फैक्टर है, मान लो ये गैसेस ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा स्पीड में ट्रेवल कर रहे हैं अंदर। कल मैंने बताया था केटी जी, उनका स्पीड का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है? जो स्पीड का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर एंड टेम्परेचर। हाँ हाँ, मॉलिक्यूलर स्पीड। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर, और मॉलिक्यूलर स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा? कोई भी आरएमएस, कोई भी स्पीड ले लो, कौन सा रहता है? रूट ओवर P/m। ये देखो, यही मैं बता रहा था कृतिका कि देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इंक्लूडेड है। तो बच्चों यही तीन फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। अगर हम तीनों को कंबाइन करते हैं, ऑल थ्री, तो क्या आ रहा है? रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से एक्चुअल में ही आना चाहिए डेल्टा पी, याद रखना डेल्टा पी ही होता है मेनली, बट मैं पी लिख रहा हूं एज्यूम करते हुए कि बाहर पे कोई प्रेशर नहीं है, राइट? सो प्रोपोर्शनल टू पी इंटू एरिया मल्टीप्लाई बाई रूट ओवर टी बाई एम। ये पूरा है बच्चा। अब सोचो कि आप सेम कंटेनर से अगर दो गैसेस का आप इफ्यूजन देखना चाहते हो सेम कंटेनर से, इफ वी वांट टू कंपेयर rate of diffusion, comparison of rate of diffusion of two different gas from same container. The moment you are saying same container, right, at same temperature, same container, इसका टेम्परेचर क्या है? फिक्स है। Container having a fixed temperature, very very important, temperature fix है उसका, राइट? तो क्या बोलोगे आप कि सर ये कंटेनर है और यहाँ पे सपोज करो ओरिफिस है, यहाँ से आप इसको प्रेशर दे रहे हो, ऐसा ये बाहर निकल रहा है, राइट? सो टू डिफरेंट गैसेस, एक बार आपने O2 चेक किया एंड सेकेंड टाइम में आपने हीलियम चेक किया, वन बाय वन। सो व्हाट विल हैपन गाइस? सो आप देखो, रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू एरिया विल बी कांस्टेंट फॉर दैट, यस और नो? एंड P will be also, area will be constant and temperature will be constant, yes or no guys? So that will be P divided by root over M. So आप बोल सकते हो कि R1 by R2 will be equal to P1 by P2 root over M2 by M1, understood? Yes or no? तो ये एक important relation है, ध्यान रखना है सबको। ठीक है। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर
अच्छा, इसको मैं और कुछ लिख सकता हूँ क्या? ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं कुछ और भी लिखना चाहता हूँ. I want to write even more in detail. इसको देखो तो मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूँ बच्चों, ध्यान से. That is equal to P1 by P2. ध्यान से देखो तो VD2 by VD1, या सिंपली इतना स्टोरी लिखने के बजाय D2 by D1. What is D1 D2? Vapor density. Can I write like this? Yes. Because molecular weight is equal to 2 into vapor density, yes or no? So I'll simply substitute that. 2 will be cancelled out. और देखो एक टर्म और लिख रहा हूँ, और एक लिख रहा हूँ. P1 by P2 हो गया, D2 by D1. उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, इसको मैं ऐसा भी लिखना चाहता हूँ. देखो तो N1 by N2 root over M2 by M1, where N1 and N2 are the number of mole of gases inside the container. Yes or no? क्या लिख सकता हूँ क्या मैं ऐसे? बोलिए. Yes, sir. ये बाकी सब लोगों का आवाज नहीं आ रहा है. Can I Yes, write like sir. this? Yes. काव्या, समझ आ रहा है? Yes. ऐसा लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं ऐसा? समझाओ मुझे. How can I write like this? How can I write N1 N2 over here? Yes, anyone? So partial pressure is mole fraction into total pressure. Very good. That's what I wanted to hear. Over now. कि सर आपके पास अगर कंटेनर में 2 गैसेस हैं, राइट, तो जो उनका प्रेशर है वो तो किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोल इंटू RT by V. तो क्लियरली P1 is equal to N1 RT by V. P2 is equal to N2 RT by V. तो सर P1 by P2 के जगह पे नहीं लिख सकता हूं मैं सिंपली N1 by N2? क्यों? काव्या लिख सकते हैं? Yes. Fine. So this is what we have got it. So that's why I'm writing. So please be open. दिमाग में एकदम सेट रहना चाहिए कि कैसे इसका यूज करना है. अभी मैं इसको मोल को मैं फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता हूँ. मास बाय मोलर मास, स्मॉल m1 upon capital M1, small m2 upon capital M. I can do that also. So depending on the data in the question, I'll try to manipulate. But the root, you need to just understand this. I have given you every possible thing so that you can analyze. सारा चीज मैंने आपको अच्छे से समझाया है यहाँ पे. तो खत्म हो गया. अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? बुक में जो स्टेटमेंट है वो कौन सा है बेटा? एक बुक में स्टेटमेंट है, आपने देखा होगा. कौन सा स्टेटमेंट है? रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन. बोलिए क्या लिखा हुआ है बुक में? रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन of a gas
under identical, या यहाँ रेट के बजाय नहीं, रेट तो हमने लिख लिया, रेशियो ऑफ रेट, रेशियो ऑफ rate of diffusion or effusion for two gases under identical, right, identical condition. The moment it is saying under identical condition means आपका एरिया भी सेम कर दिया, टेम्परेचर भी सेम कर दिया और प्रेशर भी सेम कर दिया, एटीपी तीनों सेम हो गए, will be equal to the ratio of root of the ratio of, yes na, square root of the ratio of inverse of their molecular weight. ठीक है, तो एक तो स्टेटमेंट ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, और जो बुक्स में आपको मिलेगा वो और भी इसका सिंपलर वर्जन है। उसमें तो सिंपल इतना लिखा हुआ है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन अंडर आइडेंटिकल condition is inversely proportional to molecular weight of the gas. इसी molecular weight को आप vapor density, so rate of diffusion or effusion is capital M. Vapor density, density also, I hope you understand this, yes or no, क्योंकि डेंसिटी में भी क्या होता है, PM by RT। सो यहाँ पे भी देखो मॉलिक्यूलर वेट है, ये सारा कंडीशन एक जैसा है तो प्रोपोर्शनल टू। सो गाइस ये इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, दैट इज R1 by R2 विल बी इक्वल टू रूट ओवर M2 by M1। बट ये ध्यान रखना बच्चों, आइडेंटिकल कंडीशन लिखा हुआ है, ये बुक स्टेटमेंट है, ठीक है, आई विल नेवर कंसिडर दिस। हमें सिंपल जनरल रूल ध्यान रखना है कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम, राइट। सो VD2 upon VD1, D2 upon D1। कंडीशन आइडेंटिकल नहीं है तो भाई हमारे पास जनरल रिलेशन है, वी ऑल नो दैट हाउ टू यूज। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो एक मैंने पाइप ले रखा है बच्चों, जिसके दोनों साइड पे मैंने कॉटन लगा रखा है, और इसको मैंने सोक किया हुआ है दो गैसेस से, एक है अमोनिया एक साइड में, दूसरे साइड में HCl। सपोज करो कि यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है गैस का सेम है, आप देख रहे हो ये पूरा एरिया यूनिफॉर्म है, एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परेचर दोनों साइड का फिक्स है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये इसका मिड पॉइंट आपको मालूम है, ये एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर IIT JEE का क्वेश्चन है बच्चों। तो सपोज करो ये मिड पॉइंट है, तो बच्चों वैसे आपको रिएक्शन अगर नहीं मालूम हो तो अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि ये बेसिक गैस है, HCl is an acidic gas, the moment they combine together they form
अमोनियम क्लोराइड विच इज आयनाइनिक कंपाउंड, वाइट डेंस फ्यूम अपीयर होता है। वाइट डेंस फ्यूम, राइट। तो क्वेश्चन ये था इनका कि क्वेश्चन में ये पूछा था वाइट डेंस फ्यूम किधर अपीयर होने वाला है, वेयर विल white dense fume first appears? ये क्वेश्चन था, ठीक है। और ऑप्शन में आपको दिया था towards, wait a minute, yeah, towards the side of HCl, B था towards the side of ammonia, C था किधर, at the midpoint, और फोर्थ है none of these, means it will not appear basically white dense fume, white dense fume will not appear। बताइए आपके हिसाब से क्या लगता है क्या आने वाला है? ऑप्शन ए। यस ऑल ऑफ यू। एनालिटिकल क्वेश्चन है बच्चा, सोचना पड़ेगा, सोच के थोड़ा आंसर करना पड़ेगा। डी आना चाहिए। फिर डी। नो सर, ऑप्शन ए। चलो एक एक लोगों से पूछता हूँ। नक्षत्रा, ऑप्शन ए सर। यू विल गो फॉर ए। काव्या, Kavya, are you there? Option D, but I'm not sure. You're thinking D, but you're not sure. Okay. Manasvi? A, sir. A. Anuj? डी। Kritika? D, sir. Swastika? A, sir. Yasti? D, sir. बहुत घटिया क्वेश्चन था ये बताओ मॉलिक्यूलर वेट मालूम है क्या सबका? HCl का मोलर वेट कितना आएगा? वन 35.5, 36.5, राइट? Yes, sir. Yes, sir. मोलर वेट ऑफ अमोनिया कितना आने वाला है बेटा? 14 + 3 17। एक चीज समझ में आ रहा है कि सर दोनों साइड आइडेंटिकल है, प्रेशर एंड ये सारा चीज। और HCl जैसे यहाँ पे करूंगा तो गैस है भाई, तो स्प्रेड करेगा। इधर कुछ भी नहीं है तो स्प्रेड तो करना स्टार्ट करेगा, ये भी स्प्रेड करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज विच विल ट्रेवल फास्टर। तो एक बात बताओ, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू, आपको मालूम है अगर आइडेंटिकल कंडीशन हो तो √m, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसका स्पीड कम आएगा। यस और नो?
तो यार ये तो सिंपल सा बात था ना. अब देखो HCl is too heavy, ये slowly जाएगा. अमोनिया is too light, it will travel faster. तो मिड पॉइंट तो क्रॉस करके कहीं इधर ही बनने वाला है. वाइड डेंस फ्यूम somewhere here. Understood or not? I really didn't understand why you guys answered D. Right. Wide dense fume will not form. ये क्यों आपने किया मुझे समझ में नहीं आया. The conditions, sir, temperature conditions, sir. Depends on the temperature also. अरे बाबा कम ऑन यार, रूम टेम्परेचर पे लिया हुआ है. और अमोनियम क्लोराइड का जब भी कॉम्बिनेशन होने वाला है तो वाइड डेंस फ्यूम बनेगा. द मोमेंट दे विल कम टुगेदर दे विल फॉर्म. अब आप ये मत बोलो कि सर यू हैव टेकन एलिवेटेड टेम्परेचर. इफ दैट वुड बी द केस आई विल टेक. I tried to ensure that both the side we should have identical condition. क्या आपके जब दिमाग प्रेशर डिफरेंस भी नहीं होगा जब भी होगा. हाँ बेटा, कौन सा प्रेशर, इधर तो कुछ है ही नहीं ना अंदर, तो प्रेशर डिफरेंस तो है ना. यहाँ पे अमोनिया का प्रेशर है, इधर तो कुछ भी नहीं है. यहाँ पे HCl है, इधर कुछ भी नहीं है, तो ये तो इधर आएगा ना. इसके लिए तो इधर ही फ्लो करना है ना. समझ आया सबको? सब डी बोल रहे थे. Ammonia will travel faster than HCl. So wide dense fume will be observed towards the side of HCl. Correct answer is A. नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट देखता हूँ. ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, सोच के बताना बच्चों. I have taken a 20-meter long pipe which is having a uniform area throughout. From this side I am sending hydrogen. From this side I am sending methane. एक मिनट, just रुक जाओ. Oxygen, right, under identical condition. So find the distance from H2 end. Find the distance from H2 end where these gases first meet. ये मेरा क्वेश्चन है. मतलब इधर से H2 डाला, इधर से O2 सेम टाइम पे स्टार्ट किया, तो बताओ कि कितने डिस्टेंस पे ये मिलेंगे फ्रॉम H2 साइड. ये लेंथ आपको दिया है, कंडीशन आइडेंटिकल दिया है. नाउ गाइस प्लीज स्टार्ट, गो अहेड. Let me explain it quickly, okay? So basically, first of all, we have to calculate the speed of hydrogen, speed of oxygen, their rate basically. So you know rate of diffusion is inversely proportional to molecular weight. So ratio of rate, if you will do root over
O2 by MH2, you will get 4. Now this rate can be written as volume diffused, means suppose if from here it is diffusing, then how much volume have it covered? Volume diffused by, so volume will be equal to area into length. That you simply write over here. So this is the volume covered, volume diffused of hydrogen, and this is basically volume, this particular part, A into X, and divided by T will give the rate. So that is equal to 4 by 1, and simply now simplify, you will get answer 4. Now the next question is, suppose, 20 ml of helium is leaked from a container. Then how much volume? ये सब simple question है यार, very simple. Volume of methane will leak from the same container under identical condition. Come on, do it. These are very simple questions. Yeah? 10 ml. Oh, 10 ml. Okay. Others, please do it fast. 10. चलो बच्चों, देखें आंसर क्या आएगा इसका? 10. सिंपल है यार, 20 ml हीलियम का लीक कर रहा है, तो ये मालूम है RHE upon R methane will be equal to molecular weight of methane by molecular weight of helium. और ये मैं रख दूंगा, कितना है 16 डिवाइडेड बाय हीलियम कितना बेटा 4, रूट ओवर 4 का मतलब, तो rate of helium upon rate of methane is equal to 2 times. So rate of methane will be equal to rate of helium. और अगर आइडेंटिकल टाइम सब कुछ सेम रह रहा है तो भाई यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हीलियम अपॉन टाइम, वॉल्यूम ऑफ CH4 अपॉन टाइम इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ CH4 विल बी इक्वल टू हीलियम, हीलियम का कितना दिया था 20, सो वॉल्यूम ऑफ CH4 विल बी हाउ मच. अच्छा मैं टाइम चेंज कर देता तो, जैसे सपोज करो 20 ml of helium is leaked from a container in 1 second, then how many ml of this other gas will be removed in 10 seconds under identical condition? Please understand, is it easy to maintain identical condition? No. क्यों? क्योंकि आप सोचो कि यहाँ से पूरा का पूरा जो भी प्रेशर है उसको हमें मेंटेन करना है जब भी ये निकल रहा है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले वाले गैस के लिए हमने किया था. सो दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल थिंग, बट यस ऐसा करने से तो आएगा आंसर. ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका यूज करते हैं हम मोस्टली आइसोटोप्स को सेपरेट करने में. मल्टीपल डिफ्यूजन. Multiple diffusion, generally used to separate isotopes. अभी मैं सिखाता हूं क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे. Let me see how many of you
Let's do it. तो क्या है बच्चों, आपके पास एक कंटेनर है, जो कि दूसरे कंटेनर में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको फिक्स कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए इसको गैप नहीं करते हैं, बाद में इसको भी ओपन कर देंगे। सो देयर वाज नथिंग हियर। सो सपोज ये आपका स्टॉपर है, इसमें गैसेस हैं, कौन कौन सी गैसेस? तो लेट अस कंसीडर, अभी जो मैं देने जा रहा हूँ वो आपको हाइड्रोजन और मान लो बेटा मैं आपको H2 एंड ऑक्सीजन दे रहा हूँ। ठीक है, इन सच अ वे दैट मोलर रेशियो of H2 to O2 is, say for example, 1:4 या 1:8 दे रहा हूँ। मतलब 8 टाइम्स ऑक्सीजन है इसके कंपैरिजन में। इसमें मोल का रेशियो अगर आप निकालो तो, अब अगर ये स्टॉपर हटा दूं मैं, तो T इज इक्वल टू 0 पे कुछ तो मॉलिक्यूल्स आएंगे ना इधर, ये दोनों के, यस और नो? तो वो जो भी मॉलिक्यूल आएगा बेटा, उसको हम बोलेंगे इनिशियली डिफ्यूज्ड मिक्सचर, कि जैसा ही टाइम T इज इक्वल टू 0 उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स आएंगे उसको बोलेंगे इनिशियली डिफ्यूज्ड मिक्सचर। तो बेटा इनिशियली डिफ्यूज्ड मिक्सचर में क्या रेशियो निकल के आने वाला है, राइट? If stopper is removed, then find, if the stopper is removed, then find the ratio of the moles of H2 and O2 in initially diffused mixture। ऐसा लिखा रहता है। करो तो फटाक से, जल्दी करो। तो यार सिंपल सा क्या बात है, सबसे पहले तो आपको बार बार यही सोचना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन अपॉन प्रोपोर्शनैलिटी किसके साथ है। यहाँ पे देखो बच्चों, दिस टाइम दे डिड नॉट, they are giving the mixture of this, right? Both are taken inside, so obviously rate of diffusion will be proportional to the partial pressure of the gas, और टेम्परेचर वगैरह सेम है तो डिवाइडेड बाई √T। एक्चुअल में पूरा चीज अगर आप लगाओ तो √T बाई, तो T भी सेम है, तो वी कैन से दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी प्रोपोर्शनल टू P इंटू √M। तो यहां से सिंपली RH2 अपॉन RO2 अगर निकालोगे तो क्या आएगा आंसर सर? सिंपली P1 बाई 1 का मतलब क्या है वहां पे, PH2 बाई P ऑक्सीजन इंटू √M ऑक्सीजन अपॉन MH2। अब इतना लिखा तो गेम खत्म हो गया। इसके बाद क्या करना है भाई? इसके बाद तो सिंपली आपको वैल्यूज रख देना, आंसर आ जाएगा। ये जो प्रेशर है मैंने बताया था, इसको हम मोल के टर्म में भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इनसाइड, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये इनसाइड की बात हो रही है क्योंकि प्रेशर अंदर से ही आने वाला है, √MO2 अपॉन MH2। तो बताओ तो मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना है? वो 1:8 का रेशियो दिया हुआ था, और ये O2 का कितना होता है 32, ये 2, यानी बाहर निकल के आएगा 4,
दैट मीन्स यू विल गेट बेसिकली 1/2 और रेट ऑफ हाइड्रोजन टू रेट ऑफ ऑक्सीजन लिखना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूज्ड divided by time whole divided by number of mole of oxygen diffused divided by time. ये क्या है? diffused mole जो बाहर निकल के है. So simply mole of hydrogen to the mole of oxygen का वैल्यू 1/2. यही हमारा फाइनल आंसर. समझ में आ गया? अब सपोज करो बच्चों जैसे मैंने वन टाइम कराया है, ठीक है, वन टाइम आई डिड and at the initial time what I got a mixture जहां पे H2O2 कितना रेशियो में आ गया? कौन से रेशियो में आ गया भाई? 1:2. मतलब आप समझ रहे हो कितना ज्यादा चेंजेस हुआ? It has changed from 1:8 to H2 and O2. जब आप इसको स्टॉपर को रिमूव कर दोगे तो इट इज नाउ 1:2. और अगर सोचो सेकेंड टाइम ओपनिंग हो गया यहाँ पे बेटा, फिर क्या आने वाला है? अगर सेकेंड टाइम ओपनिंग हो गया तो क्या आएगा? खुद से बताओ. 2 sir. समझ में आ रहा है क्या बच्चों? आपके इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा वापस से. देखो inside mole is this multiply by √32/2 that means 4. तो ये फिर से मल्टीप्लाई हो करके 1/2 into 4. फिर से अगर मैं नेक्स्ट चैम्बर की बात करूं तो ये 1/2 into 4 into 4. 1. समझ में आ रहा है? और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा बच्चों यहाँ पे. तो कितना सिंपल है यार. नंबर ऑफ मोल इनसाइड मल्टीप्लाई बाई m2/m1 होल टू द पावर nth. फर्स्ट टाइम डिफ्यूजन है, जस्ट यहाँ पे बात कर रहे हो तो आपको ये आंसर आ जाएगा. 1 यहाँ पे रख लेना. सेकेंड टाइम बात कर रहे हो तो 2, थर्ड टाइम बात कर रहे हो. समझ में आ रहा है? करेक्ट लिखा है क्या? Yes. ठीक है. सो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए आफ्टर nth डिफ्यूजन ratio of diffused mole will be the product of this. तो अब मैंने क्यों बोला था कि आइसोटोप्स को इसको सेपरेट करने में लगाते हैं. जैसे मान लो H है बेटा, H का मान लो रीजनेबल कंसंट्रेशन आपका H1 में भी है और H2 में भी है. तो आप सोचो अगर ये मॉलिक्यूल बनाएंगे तो ये H2 बन जाएगा, ये भी H2, बट इसमें इसका वेट कितना आएगा? 4. इसमें कितना आएगा? 2. अब सोचो यहाँ पे बस आप इसी का मल्टीप्लिकेशन करते जाओ तो धीरे धीरे क्या होगा? द न्यू कंपोनेंट विल बी रिचर एंड रिचर इन द वन विच इज हैविंग. बोलो. तो जिसका भी मास कम होगा बेटा वो ज्यादा होता जाएगा ऐसा करते करते. तो यही है, सिंपली आइसोटोप्स को भी ऐसे ही सेपरेट करते हैं. सो आई होप कि मैंने पूरा क्लियर किया है आपको आज कंप्लीट डिफ्यूजन. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. कल हम लोग रियल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड आई विल अनाउंस द टाइम.